Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for your patience. And let's start. Please, any one of you, let me know that my screen is visible and I am clearly audible. Yes, Muntaf, Yes. it's visible and you are clearly audible as well. Thank you so much for your response. Uh, Assalamu alaikum, everyone. And I welcome you all in this introduction to machine learning session, where we will talk about machine learning, the basics of machine learning, types of machine learning. And at the end of this session, we will have a brief practical hands-on on some sort of machine learning task. So I will start with my introduction. This is Munsif Raza, and I am doing bachelor's in software engineering from Mehran University. And I'm a final year student in Alpha MLSA. This is today's agenda. We will discuss about the machine learning, difference between traditional programming and machine learning, why we needed machine learning that we couldn't do using the traditional programming, fields in machine learning. Uh, Machine learning is used in different fields. We will discuss about those fields, types of machine learning, practical work at the end of all that theoretical talk, and then question answer session. So let's begin. First of all, what is machine learning? Now, according to this definition, machine learning is a type of artificial intelligence that allows software applications to become more accurate at predicting outcomes without being explicitly programmed to do so. Remember this line, without being explicitly programmed to do so. Machine learning algorithms use historical data as input to predict new output values. Now, apart from this big definition, we can say that machine learning is making the machine learn through data and experience. We make machine to learn through data and experience, and because of that learning, it becomes capable of giving rational decision making. It can give decisions like regarding some logic, like after some logic, that if something is given out as input, there must be some logic behind that. But the important thing that we have to remember from this slide is predicting outcomes without being explicitly programmed to do so. Now, if we talk about the applications of machine learning is being used in every next domain. Some of the examples are given here, like product recommendation. For example, आप YouTube चला रहे हो तो आपके पास आपकी पसंद के वीडियोस आ रहे हैं. This is product recommendation. आप AWS I mean Amazon पे आप कुछ चीजें परचेज कर रहे हो तो आपको जो recommendations मिलती हैं वो according to your need मिलती हैं. Image recognition, sentiment analysis, regulating healthcare efficiency and medical services, banking domain, language translations, and much more. So machine learning is basically involved in every next thing, because आज के ज़माने में अगर आप कोई भी टॉक सुनोगे तो उसके अंदर अगर टेक टॉक है, there will be always a word AI in that talk. So AI is everywhere, and machine learning is AI. Now, we have to differentiate traditional programming versus machine learning. In traditional programming, what we do is that we give data, we give rules, and we get answers. For example, we make a function that is a function that will sum up two variables and give the output of that. For example, function is sum x, y, and when we will give those variables x and y, we will get an answer, sum of those two variables is a result. Okay, this was traditional programming.
What is machine learning? In machine learning, we give data, we give answers, and we get rules. Basically, we give data and answer or data and output of that. And now the machine has to come up with that function that is used behind that logic, behind those data variables. कि अगर आप x y दे रहे हो एंड उसका रिजल्ट ये आ रहा है तो कौन सी लॉजिक के बुनियाद पे आ रहा है. लेट्स सी दिस विथ एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल हमने एक सम का फंक्शन बनाया है जो हमें रिटर्न करेगा दो वेरिएबल्स का सम. अगर 3 एंड 5 दे रहे हैं तो 8 आउटपुट आ रहा है. इफ वी आर गिविंग 7 and 5 then output is 12. If we are giving 3 and 8 then output is 11. And if we are giving 11 and 15 the answer is 26 and so on. Now for example, I am giving machine learning a data that if we are giving input is 3, the output is 31. If we are giving the input is 5, the output is 31. Sorry for the former one, it's 13. And if we are giving 7, the output is 57 and so on. Now machine has to come up with that algorithm जिसके बुनियाद पे ये outputs आ रहे हैं. Basically the thing is that why machine learning is being used, is there are so many repetitive patterns in our daily life जो हम नॉर्मली कैलकुलेशंस के थ्रू उनके पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर पाते हैं यूजिंग लाइक ह्यूमन कैलकुलेशन के. आप हम मैनुअल कैलकुलेशन बैठ के करें एंड वो अल्गोरिथम्स निकालें जिनके तहत ये काम हो रहा है. फॉर एग्जांपल अगर हम वेदर का एग्जांपल ले लें तो बारिश होनी है या नहीं होनी है, इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स के कितना क्लाउडी वेदर है, ह्यूमिडिटी कितनी है, एयर प्रेशर कितना है. एंड ऑलवेज देयर इज अ पैटर्न. एक सर्टेन कंडीशन के तहत ही बारिश होती है. एंड दैट इज डिफिकल्ट फॉर मैनुअल कैलकुलेशन कि आप उस एल्गोरिथम को एक्सट्रैक्ट आउट कर पाओ कि जिसके तहत ये होता है. बट मशीन इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट because machines have got a lot of power, computation power, and it can do. So जो हमने ये example लिया है function x का, उसको अगर machine को हम ये data देंगे तो machine हमें extract out करके देगा वो pattern, and that is कि first of all any one of you कोई है ऐसा बंदा जो इस data को देख के मुझे वो algorithm बता सकता है कि एक कोई मैथमेटिकल फंक्शन ही यूज हुआ है. एनी वन ऑफ यू कोई बता सकता है कि इसके पीछे क्या एल्गोरिथम होगा, कौन सा फंक्शन होगा? का फंक्शन होगा You can write in the chat section as well. X square plus x plus 1. Let's see. Yes, this is x square plus x plus 1. Congratulations, man, you have got good. You're going to achieve something big in your life, I must say this thing. तो yes, भाई ने बहुत सही predict किया कि ये function है. But again, this man must have got some exceptional skills in this. I don't know how he predicted this thing. But the thing is that it is difficult for human being to predict, like to extract out these sort of algorithms. And now this one was very simple and it was based on only one variable. That's why maybe it was easy to predict out. But if we are having more than one variables, and x and y and z and a and b and etc., so then it will be difficult to predict out that function. And machine learning is all about extracting out these functions, these patterns from the data. I hope this is clear to you guys. And if you guys are having any questions,
So what you can do is that you write down your questions in the chat section and send. And at the end of this talk, we will discuss all those questions so that कि आपसे वो questions lost ना हो जाएं, ठीक है? Now there are more than 3 types of machine learning, but major ones are 3: supervised machine learning, unsupervised machine learning, reinforcement machine learning. Now, what is supervised machine learning? This is a big definition. I will not like go through this one. You can read out. In simple terms, supervised machine learning is when we are making the machine learn from the data that is having the output label. For example, if we are going to predict out that either it is going to rain or not, we will have like, okay, we are taking some parameters like cloudy, how much it is cloudy, air pressure, and humidity, for example. And at the end, हम उन डेटा वो डेटा दे रहे हैं कि लाइक इतना क्लाउडी वेदर था, इतना एयर प्रेशर था, इतनी ह्यूमिडिटी थी, एंड देन इट रेन्ड, और इतना 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 था, एंड देन it did not. When the output label is given and machine is taught using that data, then it is called supervised machine learning. Okay, but again, it is very difficult to get labeled data, because practically हमारे पास जो data पड़ा हुआ है वो we are having a huge amount of data, लेकिन we don't know how to use that, and we don't have like हमारे पास ज्यादातर ऐसा डेटा नहीं आता है जो labeled हो. Then there's another type. Okay, this is some visual graph जिसके through supervised machine learning दिखाई गई है कि we are having data जो ये different symbols आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, and we are having labels of those symbols कि ये hexagon है, ये triangle है, ये square है. Now what we are doing, हम fit कर रहे हैं अपने model को using that data, and then जब हम उसको predict कर रहे हैं test data को use करते हुए, तो machine is predicting out the class of that figure. Okay, जो हमने यहाँ classes दी हुई हैं labels के तौर पे, ये वो predict out कर रहे हैं, right? Now unsupervised machine learning is when we are using unlabeled data, जहाँ पे data is not labeled, we don't know the output of that data. You must say that जब हमने start किया तो आपने बोला कि हम data को जो है वो data भी देंगे, and then machine एक algorithm predict out करके देगा. Then you must say that फिर तो ये machine learning के अंदर आ ही नहीं सकता, because जो major हमने चीज discuss की पहले वो तो इसके अंदर आती ही नहीं है. But the thing is that again machine will get the data, and according to the features of that data वो different groups के अंदर उनको divide करेगी. Again some patterns, again some algorithms. Okay, let me tell you that thing using a visual graph. Now we are having a raw data जिसके अंदर हमारे पास different type of figures हैं, लेकिन उनके जो outputs हैं, उनके जो labels हैं वो नहीं है कि like ये क्या है we don't know, ये क्या है we don't know, ये क्या है we don't know, ठीक है. But हम algorithm को जब train out करेंगे इस data के ऊपर, तो this will cluster out, group out this data into different classes. And वो कैसे करेगा? By considering the features, ठीक है. Now assume for example इसके अंदर ना assume करो कि ये जो pyramids हैं, cubes हैं, spheres हैं, अगर हमारे पास pyramids, cubes दोनों red color के होते and जो spheres हैं वो blue color के होते, and algorithm सिर्फ color के feature को consider करता, तो ये डेटा अगर ग्रुप आउट होता ना, तो एक ग्रुप के अंदर पिरामिड्स और क्यूब्स होते और एक ग्रुप के अंदर क्या होता, स्फीयर्स होते. Now here we can see that algorithm has taken their shape as a feature.
शेप को फीचर मानते हुए इसने इनको क्लासिफाई किया कि इसका शेप मैच हो रहा है, ये पिरामिड्स एक जैसे हैं, ये क्यूब्स एक जैसे हैं, ये स्फीयर्स एक जैसे हैं, ठीक है। तो दिस इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। नाउ व्हाट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग? Reinforcement learning is, as we discussed earlier, I mentioned a definition of machine learning in front of you guys, and that was making the machine learn from data and experience. Now, in previous two types, we discussed how machine can learn through data. Now, this is how machine in reinforcement learning, we will talk about how machine learns through experience. What I mean by that is we will not have data. अगर हमारे पास जैसे पहले डेटा था उसके अंदर से हम एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे थे कोई एल्गोरिथम, नाउ वी आर नॉट हैविंग एनी डेटा, लेकिन हम एक एजेंट बनाते हैं। वो एजेंट क्या करता है, डिफरेंट एक्ट्स करता है, और उन एक्ट्स के बुनियाद पे उसको रिवॉर्ड मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है कि इधर यू आर डूइंग गुड और बैड, एंड देन दैट मॉडल लर्न्स, और वो एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करता है। इसका एक आसान सा एग्जांपल दे, जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो व्हेन वी यूज्ड टू डू समथिंग गुड तो हमें शाबाशी मिलती थी पेरेंट्स से, एंड व्हेन वी यूज्ड टू डू समथिंग बैड तो हमें डांट पड़ती थी, हमें मार पड़ती थी। दैट वाज बेसिकली अ रिस्पॉन्स, अ रिवॉर्ड ऑफ दैट एक्शन, एंड फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, फ्रॉम दैट लाइक जो भी हमने एक्ट किया और उसका हमें रिस्पॉन्स मिला, from that experience we learned that these things are good things, these things are bad things. Okay, and for example हम जब छोटे थे तो for example हमने किसी गर्म चीज पे हाथ रख लिया तो हमें रिस्पॉन्स में हमारा हाथ जला, वो हमें रिवॉर्ड मिला, रिस्पॉन्स मिला फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड देन वी गॉट द एक्सपीरियंस, एंड हमने ये लर्निंग की कि दिस इज समथिंग नॉट गुड फॉर अस, बिकॉज अगर हम किसी हॉट चीज पे हाथ रखेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, राइट। सो दिस इज द सेम थिंग। मशीन के अंदर क्या होता है कि एक एजेंट होता है, फॉर से ये एक कुत्ता है, ठीक है, एंड उसका एक एनवायरनमेंट होता है, एक एरिया होता है, जिस सर्टेन एरिया के अंदर वो एजेंट जो है वो एक्शंस करता है, ठीक है। उसको एक रिवार्ड मिलता है, फिर वो उस रिवार्ड की बुनियाद पे ऑब्जर्वेशंस करता है कि दिस इज गुड, दिस इज बैड। I know that this is a little bit complex, compared to the previous two ones, uh, but like you will get to know about this thing in. Am I audible, guys? Yes, Munsif. Guys, Yes, sir. am I audible? Yes, sir, you are audible. I guess I was disconnected for a while, maybe because of some network issue. So I hope के यहाँ तक सबने सुना था कि we were talking about supervised machine learning. Now in supervised machine learning, we have two type of learnings, two type of we can say algorithms that we will extract out, two type of predictions जिसके अंदर मशीन सीखने के बाद दो different type of predictions कर सकती है, ठीक है। One is regression and second one is classification. In regression we predict continuous values. For example, हमें जो है वो एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनाना है जिसको हमने ये दिया है कि हैदराबाद के अंदर ये प्लॉट था, ऐसी बिल्डिंग थी, ऐसा घर था इसके अंदर, एंड उसकी प्राइस ये थी। फिर यहाँ पे ऐसा प्लॉट था, इतनी एरिया का था, इतने कमरे थे उसके अंदर, इतना वो डिफरेंट फीचर्स बेसिकली हमने वहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। एंड हमने वहाँ उसका प्राइस भी बताया हुआ है कि इसका प्राइस ये था। नाउ वी हैव टू लाइक ट्रेन अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो ये प्रेडिक्ट आउट करके बताए कि अगर हम उसको जो है वो रिक्वायर्ड फीचर्स दें, लाइक मे बी एरिया, मे बी नंबर ऑफ रूम्स, मे बी नंबर ऑफ बेडरूम्स, मे बी नंबर ऑफ वॉशरूम्स, मे बी नंबर ऑफ किचन्स, कुछ भी हो सकता है। जितने वैल्यूज ज्यादा देंगे
हमारा algorithm उतना ज्यादा अच्छे से predict out कर पाएगा उन चीजों को, ठीक है. And at the end, that machine learning algorithm or model will predict out the price of that house. That means continuous value. We will predict out, क्योंकि प्राइस का जो वैल्यू है वो कितना भी हो सकता है, ठीक है. इट इज नॉट लाइक एक रेंज हो गया, ऑब्वियसली इन्फिनिटी तक तो नहीं होगा, एक रेंज होगा, लेकिन अल्टीमेटली दैट विल बी कंटिन्यूअस वैल्यू. एंड इन क्लासिफिकेशन वी प्रेडिक्ट आउट डिस्क्रीट वैल्यूज, लाइक हम क्लासेस को प्रेडिक्ट आउट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने एक एल्गोरिथम बनाया है जो अगर हम उसको प्रॉपर डेटा दे रहे हैं तो प्रेडिक्ट आउट करके बता रहा है कि दिस पर्सन इज मेल और फीमेल. फॉर एग्जांपल हमने एक एल्गोरिथम बनाया जो प्रेडिक्ट आउट करके देगा कि ये इमेज जो आपने दिया है ये एप्पल का है या बनाना का है. तो डिस्क्रीट वैल्यू which means discrete classes it will predict out. Now this is classification and this is regression. In classification, this algorithm has separated out these two classes, that is this, like I don't know much about the color names, I am very bad at this thing, but again ये कुछ blue type है consider, ठीक है, and this is something like green type. तो उनको जो है वो ये जो बाउंड्री आप बीच में देख रहे हो, दिस इज एल्गोरिथम, दिस इज समथिंग दैट मशीन हैज प्रेडिक्टेड कि ये एक सर्टेन बाउंड्री है, इसके इस साइड पे जो है ना वो इस ग्रीन बॉल्स हैं, इस साइड पे जो है वो ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है. मशीन ने बेसिकली ये जो लाइन हमें प्रेडिक्ट आउट करके बताई, ये एल्गोरिथम ये फंक्शन हमें प्रेडिक्ट आउट करके बताया, ठीक है. अब हम जब भी डेटा देंगे ना तो वो देखेगा कि अगर इस साइड पे वो फॉल कर रहा है डेटा पॉइंट, या इस साइड पे फॉल कर रहा है, तो वो बताएगा कि इसकी क्लास ये है, ठीक है. इन रेग्रेशन वी यू सी के एक लाइन जो है वो प्रेडिक्ट आउट हुई है, एक लाइन बनी है जो मॉडल हमारा उसने ये फंक्शन जनरेट किया है कि अगर ये लाइन यहाँ पे बेस्ट फिट है इस डेटा के हिसाब से, अगेन जब हम x का कोई वैल्यू देंगे तो वो y का कोई ना कोई वैल्यू प्रेडिक्ट आउट करके बताएगा. And obviously machine learning is all about like again we cannot go like we cannot get 100% accuracy, लेकिन like जितना करीब हो सकता है, जितना हम फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उतना अच्छा वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है. लेकिन अगेन रेग्रेशन के अंदर हमें कंटिन्यूअस वैल्यू मिलेंगे. यहाँ पे भी वैल्यू आ सकता है, लाइक अगर 30 है तो यहाँ पे 30 का मे बी, यहाँ पे 40 है तो 40 का. इट सीम्स लाइक ये जो है वो डायरेक्ट फंक्शन है, मे बी x इक्वल्स टू y, बट वी कैन नॉट से क्योंकि इंटरसेप्ट भी है यहाँ पे. तो सॉरी फॉर कि मैं मैथमेटिकल टर्म्स यूज कर रहा था. आई होप कि इतना जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपको समझ आई हैं, एंड आपको कोई क्वेश्चन नहीं है. एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन फील फ्री to put those questions in chat section. We will obviously discuss them at the end. Then comes the unsupervised machine learning. Unsupervised machine learning के अंदर क्या होता है कि different groups बनते हैं डेटा के, different clusters बनते हैं डेटा के, जिसके अंदर एक simple जो है वो क्लस्टरिंग लर्निंग होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम डेटा देते हैं, विजुअल देख लेते हैं. हमने एक रॉ डेटा दे दिया है एंड एल्गोरिथम ने क्या किया है कि इस रॉ डेटा को जो है वो 3 डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड किया है. अब उसने डिफरेंट फीचर्स को कंसिडर किया होगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम सिर्फ कलर को कंसिडर करते तो फिर स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल एक क्लास में आ जाते, और जो अपना ये आई डोंट नो क्या है, चलो जो भी फ्रूट है वो है, ठीक है. तो वो फ्रूट जो है वो हमारा दूसरे क्लास में आ जाता, बट अगेन इसने डिफरेंट फीचर्स को कंसिडर किया है तो फिर इसने इनको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है. तो दिस इज समथिंग कॉल्ड क्लस्टरिंग. यू गाइस मस्ट से कि बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गई है, अब हमें प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू लाइक चलना चाहिए. So today we will do iris dataset problem. Iris dataset is iris problem is considered as the hello world of machine learning. And इसके अंदर basically क्या है कि एक iris के नेम से एक फ्लावर है जिसके 3 different classes हैं, 3 different categories टाइप्स हैं उसके, एंड उसके टाइप्स जो है वो डिपेंड करते हैं पेटल पे एंड सेपल पे, उनकी लेंथ एंड विड्थ पे. अगर लेंथ विड्थ छोटी बड़ी होती है तो क्लास चेंज होता है, ठीक है.
So today we will do that practical work. So first of all, I don't want to go directly to that thing. First, I want to take the questions and clear out those, and then we will move towards that thing. So everything is okay. Is Hello World is being catered as a traditional programming? Amazing. Yes, is audible. Otherwise, just keep I think why the was to x plus 25 for the rate graph. Okay, I did get how the continuity is coming to the regression. If you could answer this, please. Okay, first question is from Muhammad Najib Jilani. He says that I did not get how the continuity is coming in the regression. If you could answer this, please. Muhammad Najib, in regression, what basically we do is we predict out continuous values. Now, do you know difference between the continuous value and a discrete value? Now, this is the topic of, I guess, like mathematics. Okay, you are saying that yes. तो बेसिकली क्या होता है कि रेग्रेशन के अंदर जो है ना वो हम कंटिन्यूअस वैल्यू कैसे प्रेडिक्ट आउट करते हैं, बिकॉज जो वैल्यूज होंगे वो एक सर्टेन रेंज के अंदर लाई करेंगे, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं, लाइक अगर रिग्रेशन का हमारे पास एल्गोरिथम है तो उसका वैल्यू हमें आउटपुट के तौर पे 24.352 भी आ सकता है, 35.340 समथिंग लाइक दैट, कुछ भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला, ठीक है. तो दैट्स व्हाई रेग्रेशन इज कंसिडर्ड इज एन एल्गोरिथम जो हमें कंटिन्यूअस वैल्यूज को प्रेडिक्ट आउट करके देता है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. And if you are not like clear, do mention me कि मैं फिर से उसको थोड़ा सा elaborate करूँ. Jeev Jilani, it's fine. So much. If you guys are having any question, please do ask. Anyone? You can open up your mic as well, and yes, for sure we will share the recording with you guys. Guys, are you having any questions? If you are not, please like write in the chat section. We can move forward or move ahead. 21SW077. Man, what's your name? I really want to know. सर सदरुद्दीन है मेरा नाम. Okay, Sadruddin, that's Yes, great. sir. I am impressed by your mathematics. Like the skills that you are having in mathematics are amazing. Yes, Okay, sir. go और on to the practical work. सर AWS में टेक्निकल कोऑर्डिनेटर आपकी टीम में. Okay, boy, don't mention here. Okay, so we are moving to discuss the Iris dataset. So we are going to share the screen. First of all, I really want to is my screen visible? Are you Yes, guys sir, able screen to see visible. Visual Studio Code? Yes, sir, we are able to see. So I really okay. So if you guys are having Visual Studio, you can use that to create notebooks. The thing that you can do on Jupyter Notebook and some other IDEs, तो आप ये Visual Studio पे भी कर सकते हो. For that you have to install some extensions that I will mention here with you guys. And those extensions are, first of all, you have to go into this section where extensions are located. And then you have to search for Python extension
hack. First of all, you have to install this one. Or maybe later on I will write these extensions in chat section, but it will be good कि आप अपने पास जो है वो उनको note out कर लेते हो. Okay, मेरे पास installed हैं. Just I wanted to share with you guys कि आपको ये Python extension पे डाउनलोड करना पड़ेगा. फिर जो है वो आपको Jupyter so that's why it is taking that much amount of time. Yes, this one. You have to install this one, Jupyter and Jupyter key map. Okay, and then जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक Python का है. मैंने specifically जो है वो Python का install कर रखा है extension, and then IntelliCode को use किया है जो AI assisted development हमें करवाती है, जिसके थ्रू जो है ना वो हमें like suggestions मिल रही होती हैं जब हम कोड लिख रहे होते हैं. इस चीज को ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए आपको एक एक्सटेंशन मिलेगी Pylance के नेम से, वो आप कर सकते हो. ये आपको जो IntelliCode है उसके जो है ना वो पावर्स को इंक्रीज कर देता है इन गिविंग सजेशंस. ठीक है, तो you have to go through these things. And now the thing that I want to ask you guys is that we have two options. Either we will code everything from the scratch कि like जो भी हम करने वाले हैं वो साथ साथ करते हैं. If you guys are having accessibility to these things, ठीक है, like आपके पास Visual Studio है, या फिर maybe you can also use Jupyter Notebook if you are having that. ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हो एंड हम लाइव कोडिंग करें. ठीक है, मैं आपको करवाता जाऊं, आप भी करो, या मैं वो करता जाऊं एंड आपको बताता जाऊं. सेकंड थिंग इज वी विल आई आल्सो हैव कोड दैट इज लाइक प्री रिटन के टाइम को हम सेव कर पाए, एंड जस्ट आई एक्सप्लेन दोज थिंग्स टू यू गाइस. तो जो आप सजेस्ट करोगे हम उसके साथ जाएंगे. अगर हम लाइव कोडिंग करेंगे तो वी आर हैविंग ओनली 20 मिनट्स लेफ्ट, जो हम जो है ना वो लाइक उससे थोड़ा सा टाइम फिर एक्सटेंड आउट हो जाएगा. तो इफ यू आर हैविंग लाइक टाइम एंड वी कैन गो विद दैट तो फिर अमेजिंग. एंड अदरवाइज अगर आप बोलते हो कि नहीं हम जो है वो प्री रिटन कोड को यूज करते हुए जस्ट एक्सप्लेन दोज थिंग्स टू अस, तो फिर हम उसके साथ भी चल सकते हैं. फिर हम 1 घंटे के अंदर उसको वाइंड अप कर देंगे. तो आई नीड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू गाइज. सर वो सेकंड ऑप्शन बेस्ट है, अभी अवेलेबल नहीं है लैपटॉप वगैरह. Okay. Yeah, Munsif, pre-written is I good, I want think. maximum participation, please. Like chat के अंदर आप mention out कर सकते हो बाकी students भी के like कौन सा करना चाहिए, because I would really want कि जो majority है हम उसके साथ चलें. Yeah, Munsif, I think pre-written is good. Okay. अच्छा, हमारे पास एक और ऑप्शन भी है. हम ना जो चाहते हैं कि हम जो है वो कोड लिखें वो हैंड रेज कर सकते हैं, एंड जो बोलते हैं कि लाइक वैसे ही चलें तो फिर वो हैंड रेज ना करें. सेकंड ऑप्शन प्री रिटन कोड. ओके, हैंड्स अप हो गए हैं. एक हैंड है, 2 हैंड्स हैं. So we are having only 3 people जो बोल रहे हैं कि हमें कोड करना चाहिए. All other participants are in favor कि हम जो है वो प्री रिटन कोड को यूज. So what I would suggest कि we should go for the live coding, and if you could share the file on Teams so that we could see the recording afterward and as well as practice the code. Okay. Okay. I will share the notebook as well with you guys. ठीक है. एंड अगर आप लाइव कोडिंग चाहते हो तो प्लीज डू वोट फॉर दैट. आप हैंड रेज करो, जितने ज्यादा हैंड रेजेस होंगे हम ऑब्वियसली उसके साथ ही जाएंगे. There are 2 people still.
that is always exciting and challenging, and उसके अंदर there are high chances कि mistakes हो and हम एक साथ सीखें उन चीजों को. There are only 5 people जो चाहते हैं ना कि हम वो करें, but let's do it. ठीक है, फिर हम ऐसा करेंगे कि अगर हम किसी पॉइंट पे आके समझते हैं कि लाइक हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहा, तो फिर ना हम उस चीज को कन्वर्ट कर लेंगे प्री रिटन कोड के साथ, क्योंकि वी आर हैविंग दैट वन एज वेल. ठीक है. That's the other thing that I really want to mention here is that because of some technical reason, I am going to use Jupyter Notebook, and I just mentioned all those things that are necessary for VS Code. तो हम जो है ना वो Jupyter Notebook को use करेंगे for this task. ठीक है. So I'm going to share my screen. Is my Jupyter Notebook visible to you guys? Is it visible? Please, any one of you respond. No, Munsif. Guys, am I audible? Please respond. No, it is Am I not audible visible. now? Okay, let me share again. Is it visible now? Guys, is it visible now? Yes, Munsif. It was visible for a few seconds, but now it is not. Is it visible? Please. Yes, it is. Yes, it is. Okay. Thank you so much for your response. Okay, we are going to start coding. First of all, what we have to do is we have to import the necessary libraries that are going to be used in this session. तो जो machine learning के अंदर important libraries use होती हैं, that is NumPy, Pandas, Matplotlib, scikit-learn and Seaborn. ठीक है, तो हम वो सब जो है वो पहले import कर लेंगे. Now to import those libraries, what we have to do, we have to simply write import the name of the library, and as is used as like हम उसको एक nickname देते हैं library को. ठीक है, कि उसको जो है ना वो इस nickname के साथ आप import कर दो, like numpy is np. now अगर हम आगे कहीं भी किसी दूसरे cell के अंदर उसको call out करने वाले हैं, तो it is not necessary कि हम उसको पूरा numpy लिखें, हम np भी लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कि this is numpy. ठीक है, तो import numpy is np, pandas at pd, like these are standards जो हम जो है ना वो use करते हैं. ठीक है, and then we are going to have pandas plotting जो हम कुछ plotting बनाने के लिए use करेंगे. scatter matrix use होगा जो हमारा आगे चल को आपको समझ आ जाएगा कि इनका क्या काम है. ठीक है, and then we are going to have matplotlib .pyplot is plt, import Seaborn is SNS. Okay, we have successfully imported these libraries that are going to be used. ठीक है, now what we have to do,
I'm having this data set named Iris in my local machine. So I am going to load that data set into this Jupyter notebook. To load that, we are going to get a variable named data, then pd.read csv. Now that's why using this function. अगर हमारे पास एक्सेल में होता तो हम कोई और फंक्शन यूज करते, हम जो है वो पीडी के थ्रू डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, हम किसी and screen is clearly visible. ओके तो नेक्स्ट हमने क्या किया है कि डेटा डॉट शेप, इसके अंदर हमने शेप देखा है कि डेटा हमारा जो पड़ा हुआ है वो किस शेप के अंदर है, ठीक है, कि उसके क्या डायमेंशंस हैं. एंड फ्रॉम दिस वी कैन सी कि वी आर हैविंग 150 लाइंस, यानी कि रोज एंड 5 कॉलम्स, 5 डिफरेंट कॉलम्स होंगे और हमारे पास 150 रोज हैं इस डेटा सेट के अंदर. तो हम पहली कुछ लाइंस देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है. तो डेटा डॉट हेड, लाइक हम 10 लाइंस देख लेते हैं. These are 10 lines, first 10 lines in a data set, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ है, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है, एंड स्पीशी कौन सी है, टाइप कौन सा है, क्लास कौन सा है उसका, ठीक है. तो अब हमारे पास जो है वो दीज आर फीचर्स एज वी डिस्कस्ड अर्लियर के अगर हम रेनफॉल को प्रिडिक्ट आउट करने वाले हैं तो उसके अंदर हम डिफरेंट फीचर्स को देख रहे थे, लाइक फॉर एग्जांपल क्लाउड कितना क्लाउडी है, एयर प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है. तो इसके अंदर हम जो है वो इन 4 फीचर्स को देखेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 फीचर्स वी विल प्रिडिक्ट आउट द क्लास ऑफ दैट स्पीशीज. ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास एक फंक्शन होता है डेटा डॉट डिस्क्राइब. अच्छा, डेटा डॉट डिस्क्राइब के अंदर एक स्पेशलिटी ये होती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल हम ये इंक्लूड ऑल नहीं लगाते हैं, पहले देखते हैं कि क्या होता है. We are getting some statistical values about these 4 columns only, क्योंकि वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, एंड स्पीशीज वाला कॉलम जो है वो कैटेगरिकल फॉर्म में है, जो देख रहे हो आप लाइक अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है. तो जो डिस्क्राइब का फंक्शन होता है वो हमें बताता है ये स्टैटिस्टिकल वैल्यूज ऑफ दोज कॉलम्स व्हिच आर हैविंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल सेपल लेंथ का वो हमें काउंट बता रहा है कि लाइक कितने काउंट्स हैं भाई, 150 वैल्यूज हैं लाइक इसके सेपल लेंथ के, ठीक है. मीन क्या है, लाइक व्हाट इज द मीन वैल्यू इन सेपल लेंथ. तो सेपल लेंथ का लाइक मीन वैल्यू इज 5.8, मतलब जो एवरेज है. स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, मतलब डेटा जो है वो एक दूसरे से कितना डेविएट हो रहा है, कितना एक दूसरे से दूर है इन अदर टर्म्स. मिनिमम वैल्यू कौन सा है. फिर ये परसेंटाइल्स होते हैं, जो पहला क्वार्टाइल होता है 25% किस में लाई करता है, देन 50% किस में लाई करता है. इफ यू आर गाइज गोइंग टू स्टडी लाइक data science and machine learning, then you will need to learn statistics, and these concepts are from statistics, ठीक है. But if we will try to include all, now this function will also tell about species, जिसके अंदर वो बता रहा है कि 150 टॉप पे जो है वो आयरस सेटोसा है, एंड फ्रीक्वेंसी 50-50 है सबकी, ठीक है. एंड मीन एंड ऑल दीज आर नॉट अवेलेबल बिकॉज दिस इज इन कैटेगरिकल फॉर्म. तो उसके अंदर जो है वो इट इज नॉट पॉसिबल कि इनके मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज हों.
ठीक है। देन वी आर गोइंग टू सी कि कितने लाइक यूनिक वैल्यूज हैं डेटा के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज कितने हैं? सेपल लेंथ के 35 यूनिक वैल्यूज हैं। इट मींस के हमने देखा कि सेपल लेंथ के अंदर 150 रोज हैं, लेकिन उसके अंदर 35 जो है वो यूनिक वैल्यूज हैं, ठीक है। लाइक ऑलमोस्ट जो है वो एक जैसे से लग रहे हैं, ठीक है। एंड देन सेपरेट विड्थ का 23 यूनिक वैल्यूज एंड सो ऑन। अच्छा गाइस, मुझे बताओ कि am I audible and you guys are getting this thing, and then like you guys are here and enjoying this thing, please respond, so हम फिर आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। These are in dimensions. We will discuss again जो ये हमारा Can you IRIS repeat data set this query that you written data dot which one unique and the unique last one values that you have and written, unique data values dot n के unique. इसके जो हाँ डेटा डॉट एन यूनिक मीन्स कि इसके अंदर जो कॉलम है ना, हर कॉलम के अंदर कितने यूनिक वैल्यूज हैं। इट मीन्स कि हमारे एक कॉलम के अंदर हमने देखा कि 150 रोज हैं, यानी कि 150 वैल्यूज हैं, लेकिन सेपल लेंथ के अंदर 35 यूनिक वैल्यूज हैं। इट मीन्स कि इस 35 के बाद 150 जो वैल्यूज हैं ये रिपीटेटिवली यूज हुए, यानी कि हैं टोटल 35 डिफरेंट वैल्यूज, वो 150 टाइम यूज हुए। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ओके ओके, अमेजिंग Okay. अमेजिंग। Thank you very much. ओके अगेन हमारे पास जो ये डेटा सेट है ना, वो दिस डेटा सेट इज लाइक जो हमने बताया कि हेलो वर्ल्ड कंसिडर्ड इज हेलो वर्ल्ड इन मशीन लर्निंग, तो ये जो है वो साफ सुथरा डेटा सेट है। दिस इज नॉट मैसी वन, इसके अंदर जो है वो एरर्स वगैरह इतने नहीं है, बट जो रियल डेटा होता है वो ऐसा नहीं आता है हमारे पास। तो जो हम ये कर रहे हैं ना बेसिकली कि कितना शेप है, फिर जो इसकी स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं, यूनिक वैल्यूज देख रहे हैं, these values are used to clean out कि अगर हमारे पास कोई एरर है ऐसा तो हमें उसको लाइक सॉर्ट आउट करें। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि इस हमारे डेटा सेट के अंदर नल वैल्यूज हैं क्या, तो हमारे डेटा सेट के अंदर डेटा डॉट इज नल जो है वो हमें वापस देता है जो जितने भी जो बेसिकली ये जो है ना, हमारे पास एक सीरीज होता है, डेटा फ्रेम हमारे को मिलता है। अब दीज आर द टर्म्स दैट आर लाइक रिलेटेड टू pandas एंड numpy libraries एंड जो हम एक सेशन के अंदर कवर नहीं कर सकते, लेकिन by using that code, this code, we can see कि हमारे पास कितने null values हैं। data sum data dot is null, ठीक है। तो इस कोड के थ्रू हम क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर नल वैल्यूज हैं, कोई ऐसा वैल्यू है जहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है, लाइक जैसे हमारे पास यहाँ पे एन यूज हुआ है ना, इसके अंदर डेटा फ्रेम के अंदर अगर किसी चीज का वैल्यू गिवन नहीं होता है तो वहाँ पे ऐसा एन टाइप थिंग आ जाता है कि ये नल वैल्यू है, ठीक है। लेकिन इस डेटा सेट के अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं है। अगर होता तो हम क्या करते, उस नल वैल्यू को फिर रिजॉल्व करते कि उसकी जगह हमें क्या पुट करना है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एक ग्राफ जो है ना वो हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
as EBC as species equals to data dot group y अब देखो यूजिंग दिस स्निपेट कोड स्निपेट हमने क्या किया है कि डेटा को जो है ना वो ग्रुप बाय किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज कॉलम। स्पीशी कॉलम के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यू थे, हमने ऊपर देखे थे कि स्पीशी कॉलम के अंदर 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, आयरिस सेटोसा, आयरिस वर्सिकलर एंड आयरिस वर्जिनिका, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनके कितने काउंट्स हैं, साइज कितनी है उसकी, उसके बुनियाद पे हमने क्या किया है, एक प्लॉट बनाया है जो बार प्लॉट है। ये हमने साइज दिया है 5x5। अगर इसका बड़ा साइज रखेंगे तो ये प्लॉट बेसिकली बड़ा नजर आएगा। बाय दिस ग्राफ वी कैन सी कि हमारे पास हर एक क्लास के 50-50 वैल्यूज हैं। दैट मीन्स क्लासेस आर इक्वली बैलेंस्ड। हर क्लास की हमारे पास 50 वैल्यूज हैं। अब जब आप कोई भी मशीन लर्निंग का टास्क करने जा रहे हो ना, तो अगर आपके पास क्लासेस इम्बैलेंस होते हैं ना, तो आपकी प्रेडिक्शंस जो है वो सही नहीं आती हैं। तो बाय डूइंग दिस व्हाट वी डू, हम देखते हैं कि क्लासेस बैलेंस्ड हैं या नहीं है। अब ये तो हमारे पास एक रेडीमेड डेटा सेट है जिसको यूज करते हुए हम ये टास्क कर रहे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड डेटा ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर क्लासेस जो हैं वो इम्बैलेंस्ड होते हैं। फॉर से कि आयरस सेटोसा के 20 वैल्यूज हैं, फिर आयरस वर्सिकलर के 90 वैल्यूज हैं, फिर आयरस वर्जिनिका के 50 वैल्यूज हैं फॉर एग्जांपल। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको टैकल आउट करते हैं, उसको क्लासेस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एंड नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप लाइक स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स जिसके हम थ्रू ये कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम अप्लाई करते हैं, लेकिन अगेन ये रेडीमेड डेटा सेट है, तो लाइक वी आर गोइंग लाइक टू द नेक्स्ट थिंग। अब हम क्या करेंगे, एक ये हमने सीबॉर्न लाइब्रेरी को यूज करते हुए क्या किया है कि हमने पेयर प्लॉट बनाया है। पेयर प्लॉट बेसिकली कैसे बनता है कि हर कॉलम का हर दूसरे कॉलम के साथ प्लॉट बनता है, एंड फिर हम वहां से कोरिलेशंस देखते हैं कि एक कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ कितना कोरिलेशन है, कितना रिलेटेड है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे के, दीज टर्म्स आर लाइक मैथमेटिकल टर्म्स के कितने कोरिलेटेड हैं। अगर जब आप इस चीज के लिए पढ़ोगे तो फिर यू विल गेट टू नो अबाउट दीज थिंग्स के कोरिलेशन क्या होती है, ठीक है। एंड ये जो हमने ह्यू किया है, बेसिकली जो आप देख रहे हो ना कि 3 डिफरेंट कलर्स के अंदर हमें नजर आ रहे हैं, ये ह्यू है, ठीक है। ह्यू का मतलब है कि कौन से बुनियाद पे इसको क्लासिफाई किया जाए या डिफरेंशिएट किया जाए। तो ये जो हमारे स्पीशीज के अंदर 3 क्लासेस है, उनके बुनियाद पे इसने इनको डिफरेंशिएट किया है 3 कलर्स को देते हुए, ठीक है। एंड जो डिफरेंट हमारे पास कॉलम्स हैं, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। I hope you guys are getting, I know that these things are something that are new to you guys. Maybe there are some guys ki jinko pata hai in sab cheezon ka, and there are some people jo abhi naye naye is cheez ko explore kar rahe hain. तो जो नए एक्सप्लोर कर रहे हैं, I really want to say कि it's okay if you are not getting these terms because these are like obviously unknown to you, but अगर आप सीखोगे तो these are not difficult and आप आसानी से उसको सीख सकते हो. And I really want to mention here is that कि
अगर अगर आप कहीं पे भी लाइक यू वांट गाइडेंस इन डेटा साइंस, मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दिस। ठीक है, तो आई होप दैट यहाँ जितना हमने किया है इट इज क्लियर टू यू गाइज एंड समझ आ रहा है एंड थिंग्स आर लाइक interesting for you guys. Yes sir, we are getting all and also enjoying. Okay, अच्छा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दें कि कैसा जा रहा है एंड लाइक we move ahead. Please share the notebook after session ending. For sure Jamal, we will send these to you guys. In fact मैं आपको मे बी मेल के अंदर सेंड कर दूँ या यहीं पे चैट के अंदर मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दिस, आपको ये मिलेगा, ठीक है? ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम क्या करते हैं कि एक हिस्टोग्राम बनाते हैं इस डेटा का। आपको पता है हिस्टोग्राम क्या होता है? एनी वन ऑफ यू नो अबाउट हिस्टोग्राम? जब तक मैं कोड लिख लूँ आप कमेंट सेक्शन में बता दें। नो वन नोज अबाउट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के अंदर ये होता है कि जो हमारे पास डेटा गिवन ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेसिकली एन वैल्यूज जो है ना वो यूनिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और यहाँ हमारे पास हिस्टोग्राम यही शो करता है कि वो जो एन यूनिक वैल्यूज हैं उसका हर एक यूनिक वैल्यू कितने टाइम्स यूज हुआ है। लेकिन अगेन जो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे कि ये बिन्स कम है, इतनी ज्यादा बिन्स नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओनली 10 बिन्स है, हालांकि वैल्यूज 35 थे। इसको हम बड़ा करेंगे तो उसमें ज्यादा वैल्यूज आ जाएंगे। बेसिकली वो रेंज उसी के अंदर है जो रेंज सेपल लेंथ की थी। डिफरेंट रेंज जो है वो इतना टाइम यूज हुआ है, ये रेंज जो है वो इतना टाइम यूज हुआ है। I hope you guys are getting this thing because this is something that is like new for you. Okay, अब जो है हमने बहुत ज्यादा like डेटा को पहले हमने विजुअल ग्राफ्स को यूज करते हुए थोड़ा सा डेटा को एक्सप्लोर किया कि कितना कोरिलेशन है डिफरेंट फीचर्स के अंदर, क्या वैल्यूज यूज हुई हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ यूज है। नाउ हियर कम्स द पार्ट कि जिसके अंदर हम डेटा को जो है वो स्प्लिट आउट करते हैं। बेसिकली हम जब हम ट्रेनिंग के लिए रखते हैं कुछ पार्ट, फिर हम टेस्टिंग के लिए रख लेते हैं कि लाइक अब इस डेट मॉडल हमने बनाया वो कितनी एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट, ठीक है? तो हम जो है इस ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा में पैकेट लर्न के अंदर एक मॉड्यूल है मॉडल सिलेक्शन, जिसके अंदर जो है वो एक फंक्शन है, ठीक है? अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में स्प्लिट आउट एरे बनाते हैं जिसके अंदर जो भी हमारा डेटा है था उसके वैल्यूज को सेव करेंगे, ठीक है? यानी कि फीचर्स को सेपरेट आउट करेंगे एंड उनको सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है?
तो ये हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये हम बेसिकली यानी कि लेबल्स अलग करेंगे, अब जो हमने एरे दिया है और उसके बाद सेमी कॉलन दिया है, दैट मीन्स के जो हमारा जो रोज है ना वो सबकी सब सिलेक्ट हों, यानी कि रो 0 से लेकर आखिर वाली रो तक जितनी भी रोज हैं उनको सिलेक्ट करो, एंड कॉलम्स 0 से लेकर 4 तक, यानी कि इंडेक्स बेसिकली काम कैसे करता है 0 1 2 3 तक, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 0 से लेकर 4th कॉलम तक, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा कॉलम जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। एंड हमने देखा था कि इन कॉलम्स के अंदर वो फीचर्स हैं, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि y का जो है वो हमने एरे में से सब रोज निकाली है, लेकिन ओनली एंड ओनली एक कॉलम जो 4th वन कॉलम जो 4th इंडेक्स पे है, ठीक है। तो ऐसे हमने जो है वो डेटा को गैदर किया है एक्स एंड वाई फॉर्म में। अब क्या है, जो हमारा फंक्शन है ना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, वो क्या करता है, हमें 4 वैल्यूज वापस करता है, ठीक है। एक्स ट्रेन का देगा डेटा, एक्स टेस्ट का, एक्स वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट का, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास फुल डेटा सेट है 150 लाइंस का, ठीक है। अगर हम उसको जो है वो 80-20 पे स्प्लिट आउट करते हैं, यानी कि 80% डेटा हम ट्रेनिंग के लिए रख लेते हैं एंड 20% डेटा जो है वो टेस्टिंग के लिए रख लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या कि जो 80% है उसके फीचर्स एक्स ट्रेन में आ जाते हैं एंड उसकी जो लेबल्स हैं वो वाई ट्रेन में आ जाते हैं, ठीक है। एंड जो 20% डेटा है उसके जो फीचर्स हैं वो एक्स टेस्ट में आ जाते हैं एंड जो लेबल्स हैं वो वाई टेस्ट में आ जाते हैं। आई होप कि ये सब चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस तो फील फ्री टू आस्क, आप चैट सेक्शन में डाल दें, वी विल डिस्कस ऑल दीज, ठीक है। अब हम क्या करें, इस फंक्शन को यूज करते हुए हम बेसिकली हमने एक्स वाई को दिया है, ठीक है। एंड टेस्ट साइज का मतलब होता है कि इसको हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर कितने परसेंटेज के अंदर स्प्लिट आउट करना है। तो हमने यहाँ पे टेस्ट साइज जो है वो 20% रखा है। इट मीन्स कि 20% डेटा जो है वो टेस्टिंग के लिए यूज होगा एंड 80% जो है वो ट्रेनिंग के लिए यूज होगा। देन जो है वो रैंडम स्टेट का मतलब है कि वैल्यूज को आप रैंडमली पिक करना फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ऐसा ना हो कि पहले वाले आप 80 फॉर एग्जाम्पल 100 वैल्यूज हैं और हमने 80-20 पे स्प्लिट किया है, तो पहले वाले 80 वैल्यूज आप जो ट्रेनिंग के लिए ले लो, बाकी के जो 20 वैल्यूज हैं वो आप टेस्टिंग के लिए रख लो, ऐसे नहीं। यू हैव टू रैंडमली पिक एंड रैंडम स्टेट जो है वो हमने 1 रखी है। दिस इज लाइक अ वैल्यू जो आप कोई भी दे सकते हो, जितनी रैंडमनेस आप रख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे, ये रन हो गया एंड हमें जो है वो वैल्यूज मिल गए हैं इस जो इन वेरिएबल्स के अंदर सेव हो गए हैं, ठीक है। अब हम जो है वो एक एल्गोरिथम है इसके लर्न जो है ना वो बेसिकली साइकिट लर्न svn equals to svc and then svn dot fit, जिसको अंदर हम एक स्ट्रिंग एंड वाई ट्रेन वैल्यूज। अब हमने क्या किया है, scikit-learn लाइब्रेरी के अंदर जो है ना वो सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर SVC एक एल्गोरिथम है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जिसके थ्रू हम क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है कि हम वैल्यूज देंगे फिर हम जो है ना वो डिफरेंट क्लासेस को प्रिडिक्ट आउट करेंगे। तो ये एक क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है जिसके अंदर एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है SVC सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, वो हम यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पहले हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर जो है एक वेरिएबल के अंदर उस के ऑब्जेक्ट को इनिशिएट किया है,
देन क्या है कि उस जो मॉडल को हमने इनिशिएट किया है उसको डॉट फिट एक जो है वो उसका फंक्शन है उस ऑब्जेक्ट का, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन जब हम डेटा देते हैं, यानी कि फीचर्स एंड लेबल का जब डेटा देते हैं, तो वो जैसे हमने पहले थियोरेटिकल पार्ट में देखा कि वी गिव डेटा एंड आउटपुट्स टू गेट द एल्गोरिथम। तो इसके अंदर बेसिकली वही होगा कि एसवीएन जो है वो इस डेटा के ऊपर फिट होगा एंड फिर हमें एक एल्गोरिथम मिलेगा। तो ये रन हो गया एंड हमें एल्गोरिथम वो मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एवेल्युएशन करेंगे कि हमारा जो मॉडल हमने बनाया है वो कितना एक्यूरेट है, कितना सही काम कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रेडिक्शंस कर रहे हैं ट्रेड, ठीक है, एंड svn डॉट predict and then x test। अब हमने क्या किया है कि जो हमारे पास एक्स टेस्ट के अंदर फीचर्स गिवन थे उनको यूज करते हुए हमने वो मॉडल को दिया कि प्रिडिक्ट आउट करो कि इनके क्या क्या क्लासेस हैं। ठीक है, अगर हम ट्रेड को प्रिंट आउट करें तो बेसिकली इसने ये प्रिडिक्ट आउट किया है कि पहली जो डेटा आपने दिया वो मोस्ट लाइकली आयरिस सेटोसा है, दूसरा आयरिस वर्सिकलर है, तीसरा भी आयरिस वर्सिकलर है, चौथा आयरिस सेटोसा है एंड सो ऑन। ठीक है, ये हम जो भी इसके पास डेटा था उसके हिसाब से इसने प्रेडिक्शंस निकाली हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि हम देखते हैं कि हमारे मॉडल ने कितना एक्यूरेटली इस चीज को प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn, ये scikit-learn है, उसके अंदर एक जो है वो मैट्रिक्स के नाम से मॉड्यूल है, वहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक्यूरेसी स्कोर। एक्यूरेसी स्कोर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम जो है वो प्रिडिक्टेड वैल्यूज एंड रियल वैल्यूज देते हैं एंड फिर हमें जो है वो मालूम पड़ता है कि कितनी एक्यूरेसी आई है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्यूरेसी इक्वल्स टू accuracy score and then we are going to give real values that were y test and then what we have predicted using the algorithm that are pred। ठीक है, जो हमने pred के अंदर सेव किया था। अब हम accuracy को प्रिंट आउट करते हैं। see we have got 96% of accuracy, यानी कि जब भी हम इस एल्गोरिथम को यूज करते हुए इस क्लास की प्रिडिक्शन करेंगे तो 96% चांसेस हैं कि हम सही प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल हम एक प्रिडिक्शन करते हैं, सही है, हम क्या करते हैं कि एसवीएन एल्गोरिथम को हम कुछ रैंडम डेटा देते हैं। ठीक है, प्रिडिक्ट, ये इसका फंक्शन है, इसके अंदर हम क्या करते हैं वैल्यूज देते हैं। फॉर एग्जांपल सेपल लेंथ का वैल्यू हम 1.2 देते हैं, फॉर एग्जांपल 3.5 देते हैं, 4 देते हैं इसका सेपल विड्थ का, फिर जो है वो लाइक 6.7 देते हैं पेटल लेंथ का एंड 1.7 देते हैं पेटल लेंथ का। तो ये लेंथ या विड्थ जो भी था, लेकिन 4 वैल्यूज हैं तो हमने 4 वैल्यूज बेसिकली दिए हैं। ठीक है, अब हम जब इसको रन करेंगे तो ये प्रिडिक्ट आउट करके बताएगा कि इसका क्लास कौन सा है। सी इसने प्रिडिक्ट आउट किया है कि इसका क्लास आयरिस वर्जिनिका है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको कोई और वैल्यूज देते हैं svn डॉट प्रिडिक्ट, उसके अंदर हम देते हैं 5.6, 1.6। ठीक है, 4 वैल्यूज हमने दे दिए। ओके ग्रेट, अब हम इसको रन कर रहे हैं, इसने प्रेडिक्ट आउट करके दिया है कि ये भी आयरिस वर्जिनिका ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम और कोई वैल्यूज देते हैं जो बहुत ही इससे कुछ ज्यादा ही इधर उधर हों। आई होप कि हम रैंडमली कुछ अलग वैल्यूज दें जिससे कोई दूसरा क्लास आ जाए। हम 1.8, 2.9, 3.7, 5 भी हम रैंडम वैल्यू
बेसिकली इसका हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से ना हम किसी और क्लास के वैल्यूज लेके आते हैं, सही है। जो हमने देखा था ना हेड के वैल्यूज कहाँ गए, सही। ये जो है आयरस सेटोसा के वैल्यूज हैं, ये हम ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और फिर ये हम यहाँ आके इसमें प्रिडिक्शन करते हैं कि ये सही प्रिडिक्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो वी कर दिए हमने। अंदर हमें जो है वो कॉमर्स देनी होगी। लेट्स रन। ओके ग्रेट। हमने जो है वो आयरस सेटोसा ले लिया हमने कुछ रैंडम वैल्यूज को यूज करते हुए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मशीन लर्निंग, दिस वाज हैंड्स ऑन दैट एल्गोरिथम एंड मशीन लर्निंग का छोटा सा हमने एक पार्ट किया। ये मैं आपके साथ नोटबुक शेयर कर दूंगा, ठीक है, जो आप अपनी लर्निंग के लिए भी यूज कर सकते हो। इसको एक्सप्लोर आउट कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ों को ट्वीक करके देख सकते हो कि आप इसके अंदर क्या कुछ नया कर सकते हो। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर सेशन। उप्स, मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं थी आप लोगों को। Guys, are you there? It was visible, sir. It was visible. Okay. Thank God. I thought कि it was not visible. तो आपने एंड तक देखा है पूरा, ठीक है। प्लीज रिस्पॉन्ड। आप जितना ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे उतना ज्यादा हम अच्छे से काम कर सकते हैं इसके ऊपर। क्योंकि हमें टाइम ज्यादा हो गया है, तो आई नो कि आप लोग कुछ थक भी गए होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं एंड फिर हम एंड कर देते हैं इस चीज को, ठीक है। प्लीज योर नोटबुक। इज इट अ चार्ट ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ बार्स? ओके, दैट्स हिस्टोग्राम, ठीक है। It shows underlying frequency used for statistical relationship like median. Feature और labels को थोड़ा elaborate कर दें। Features are basically for example जो है हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब्दुल कबीर, I don't know कि हमारे साथ अब्दुल कबीर है या नहीं है। हाँ है। अब्दुल कबीर, बेसिकली फीचर्स क्या होते हैं? एक चीज के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक एप्पल को ले लेते हैं, एक बनाना को ले लेते हैं। अगर हम कलर की बात करें तो कलर एक फीचर है, ठीक है। बनाना का येलो है, एप्पल का फॉर एग्जांपल रेड है, सही है। अगर हम शेप की बात करें तो एप्पल की जो है लाइक कुछ स्फेयर टाइप होती है और बनाना की थोड़ी इलोंगेटेड एंड इलिप्स टाइप, सब यू नो कि उसका क्या शेप होता है, सही है। तो फीचर्स आर बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट थिंग। इन लेबल्स क्या है कि ये बनाना है, ये एप्पल है। आप समझ रहे हो मेरी बात? फीचर्स आर इनपुट्स एंड लेबल्स आर आउटपुट्स। मोहम्मद जमाल ने बहुत अच्छी बात की है, वेरी वेरी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी सर, एंड तक देखा था। ओके, थैंक यू सो मच गाइस for your time and thank you so much for your patience and I hope कि इस सेशन से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। I hope कि आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। एंड बिकॉज ऑफ कि हमने वो लाइव कोडिंग किया तो हमने कुछ ज्यादा टाइम ले an hour, but it was very difficult to complete that in 1 hour जब हम वो प्रैक्टिकल टास्क कर रहे थे। तो but thank you so much for your patience and I hope कि आपने लर्न किया होगा। अभी भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो feel free to ask, otherwise I am always available on LinkedIn, you can reach me out there. I am with the name of Sifraza. And if you are guys not having my contact number तो फिर आप मुझे मेल के थ्रू रीच आउट कर सकते हो and I will respond there as well. I will be like glad to help you out. So thank you so much, thank you, and we are officially going to end this thing. If you are having any questions, you do ask. If not, then just like mention good to go and हम जो है वो इसको end कर देते हैं। Thank you brother, may Allah keep you happy. Thank you so much Mohammad Jamal, Sayyid Arif Azadi, thank you for
live session. I have learned a lot of new things. Thank you so much, Reba. 21HW058. Thank you, sir. Sir, you are always welcome. I don't know your name, but like people from 21 software batch are like good, I must say. 21 and 20 and all those people, like they are doing great. Okay, anyone else? Okay, so we are ending this. Thank you so much for your time, and Allah Hafiz, and have a good day. Like, have a good night.